Hello children, how are you? I hope you all are doing well and learning the new things in English. I hope you are reading lovely new novels and some small storybooks also, and you've started practicing some writing skills as well. Children, it is very important to practice English because that will make you a pro in your English skills, and in front of others you will be an expert very soon. So, let's talk about appreciating helpers in this chapter. So, what does the prologue say? One who cannot move a small stone should not talk about moving a mountain. No work is small. Each job is an opportunity to learn something new. Although most of us will agree to it in saying, but do we in actions? The people who really want to do something big in life are open to accepting any challenge that comes in their way. They do not consider any work big or small. After all, tiny drops of water fill a mighty ocean. So बच्चों, what does it say? अगर कोई भी इंसान कुछ भी काम करने के लिए रेडी है तो ही कैन अचीव अ लॉट इन हिज लाइफ. बट जो आलसी होते हैं, जिनको काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि छोटे छोटे ड्रॉप्स भी, जब बूंदें होती है बारिश की, छोटी छोटी बूंदें भी क्या कर देती हैं. हम जब बकेट रखते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बकेट रखते हो तो क्या हो जाता है, बकेट फुल हो जाता है छोटी छोटी बूंदों से ही. वैसे व्हाट दिस सेज, आफ्टर ऑल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल अ माइटी ओशन. जो ओशन होता है कितना बड़ा होता है, पर फिर भी उसमें जब बारिश का पानी आता है तो वो और बढ़ जाता है. ओके, सो लेट्स वार्म अप. Okay, one day you see your mother cleaning the house while your father was washing his car. Would you stop loving them or respecting them? Will you start talking to them rudely? Think why or why not. अगर आप किसी दिन आपकी मम्मी को घर साफ करते हुए देखोगे, अपने पापा को गाड़ी क्लीन करते वक्त देखोगे, तो क्या आप उनके साथ प्यार से बात करना छोड़ दोगे, उनसे प्यार करना छोड़ दोगे? क्या आप रूडली बात करोगे उनसे? क्यों? सोचो उसके बारे में, और क्यों नहीं उसके बारे में भी सोचो. सो लेट्स गिव अ टीचर्स टिप. The teacher may start the lesson by telling the students about different vocations and their importance in our life. So बच्चों, अलग अलग चीज़ें होती है जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. कोई भी काम छोटा नहीं होता है. दूसरों के साथ प्यार से बात करना, that is very important in life. Okay, you have to be kind to others, you have to appreciate others and also help others. Okay, now let's read this story to understand this better. Sneha was a little girl. She was very pretty. Her father said that she is so cute. Mom said she is a doll. But Sneha was proud. She talked rudely. She did not respect the people around her. She did not like her helpers either. She did not like her driver. He looked so ugly. She called him Uncle Black. She did not like the maid. Her clothes were not nice. Her hair was grey. She was not pretty. She did not like the boy who cleaned the car. His hair was black. He was fair, but he dipped his hands in dirty water and his clothes were also very dirty. तो स्नेहा नाम की एक प्यारी सी लड़की होती है. ओके, उसके पापा उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत क्यूट हो. मम्मी उसको डॉल बुलाती है. बट बिकॉज ऑफ हर लुक्स, वो क्या होता है, उसको आता है घमंड. उसको लगता है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, जिसकी वजह से वो प्राइड आता है उसको. शी फील्स वेरी प्राउड. उसकी वजह से देन शी स्टार्ट्स लुकिंग एट अदर पीपल लाइक एज दो दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर. ओके, तो जैसे उनका जो ड्राइवर होता है, उसको लगता है वो ड्राइवर काफ़ी अगली दिखता है, इसके लिए उसने उनका नाम ही अंकल ब्लैक रख दिया. उसके मेड के जो कपड़े उसको अच्छे नहीं लगते थे, तो उसके बाल भी सफ़ेद थे, तो उसको अच्छा नहीं लगता था और बोलती थी कि वो प्रिटी नहीं है. वैसे ही जो लड़का उनके घर में उनकी गाड़ी साफ़ करने के लिए आता था, वो कहती थी कि वो है तो गोरा पर उसके बाल काले हैं, वो गंदे पानी में हाथ डालता है, तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी. स्नेहा ऑल्सो टॉक्ड रूडली टू द मेड्स इन स्कूल. जो स्कूल में मेड्स होती है उनके साथ भी वो काफ़ी रूडली बात करती थी. इफ़ द गार्ड एट द गेट कॉल्ड हर, शी डिड नॉट रिप्लाई. She had only one friend,
Minnie, the girl with brown eyes. तो वो गार्ड भी जब उसको बुलाता था वो उनके पास नहीं जाती थी, उस रिप्लाई ही नहीं करती थी. तो उसकी एक ही दोस्त थी, उसकी दोस्त का नाम था मिनी. ओके, और मिनी की जो आंखें थी वो ब्राउन कलर की थी. So one day Sneha was waiting at the bus stop, but the bus did not arrive. She asked her father to drop her, but the car was not clean. She had to use the dirty car, but no one was there at the school gate to see this. The class was also dirty. The toilet was also not clean. Sneha was feeling upset. तो एक बार क्या होता है, स्नेहा बस स्टॉप पे वेट कर रही होती बट उसकी बस ही नहीं आती. फिर वो अपने पापा से कहती कि आप मुझे छोड़ दो, बट उनका ड्राइवर आता नहीं है, तो इसके लिए वो गाड़ी भी गंदी होती है, साफ़ नहीं होती है, तो उसको गंदी गाड़ी में जाना पड़ता है. फिर जब स्कूल पहुंचती तो कोई भी नहीं होता है वहाँ पे. फिर वो जब अपने क्लास में जाती तो क्लास भी गंदा होता है और टॉयलेट भी गंदा होता है, काफ़ी अपसेट हो जाती है. सो नाउ लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी सो फार. सो फॉर दैट यू हैव टू डू द माई परफॉर्मेंस ट्रैकर पोर्शन. आपको ये जो सवाल है ना उनके जवाब देने हैं, तो तभी समझेगा आपको कि वेयर यू स्टैंड विद द स्टोरी सो फार. Okay, so now when she came back home, the house was also dirty. Mom, what is wrong today? She asked her mother. You didn't like the driver, cleaner, maid and guard, so I told them not to come. Are you happy now? Said mother. तो उसने क्या बोला, जब वो घर आती है देखती है घर भी गंदा है, तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या हो गया. तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें तो ड्राइवर, क्लीनर, मेड, गार्ड कोई भी पसंद नहीं ना, इसीलिए मैंने उनको सबको हटा दिया. बट देन हु विल डू द वर्क? आस्क्ड स्नेहा. फिर स्नेहा पूछती, ओह तो अब काम कौन करेगा? तो उसकी मम्मा कहती है, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन, सेड मदर. बट when will I play? When will I go to school? I am so young. How can I do all the work? cried Sneha. तो स्नेहा को तो टेंशन आ गया. कहती है, मम्मा फिर मैं खेलूंगी कब, मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं तो कितनी छोटी हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ये सारा काम. और वो रोने लगी. तो वो मम्मा से कहती है कि मम्मा सॉरी. तो स्नेहा को अब आ गया टेंशन. वो मम्मा से कहते हैं कि मम्मा पर मैं खेलूंगी कभी, मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी, इतना सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगी. और वो रोने लगती है. तो उसकी मम्मा उसको समझाती है, कहती है, दैट इज़ वाई वी नीड हेल्पर्स. दे डू सो मच वर्क फॉर अस, दे मेक आवर लाइफ नाइस एंड ईजी. मदर टोल्ड स्नेहा. We must thank them, we must respect them, we must be grateful to them, we must like them for the work they do and not for how they look. Okay? तो मम्मा उसको समझाती है कि बेटा हमें इन सब की ज़रूरत है, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा काम करते हैं, इसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, वी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. ठीक है, तो वो स्नेहा को समझा देती है. अब स्नेहा तो समझ जाती है, तो वो कहती है, आई एम सॉरी मदर, प्लीज़ कॉल देम बैक, आई विल बी नाइस टू देम, सेड स्नेहा. सो स्नेहा सेज, मम्मा प्लीज़ उनको वापस बुलाओ, अभी अब से मैं उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करूँगी. सो सी चिल्ड्रन, don't be rude to those who are helping you or your parents or anyone for that matter. Okay, you are not supposed to be rude to anyone. You have to appreciate the persons who are helping you. Okay, so try to be calm and help us. Now learn the important words and start doing the back exercises so that we know how much you followed the chapter and how interesting it was.